Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Best of CAT LRDA practice series, right? So we have been doing a lot of sets. 11 sets आपके already हो चुके हैं, right? So इनको practice करो. These are very helpful sets, right? थोड़ा effort लगेगा because these are very good level sets. But yes, you have to practice them if you want to crack them. ठीक है, चलो. So let's begin. So first things first, if you're a CAT 24 aspirant and you're looking for a comprehensive batch, so this is the Chanakya batch. ये हमारा last batch है, right? And 27th of May 24 से start हो रहा है. You will get everything in this batch along with OMITS preparation. इसमें आपके बाकी exams की भी preparation होंगी जितने भी आपके MBA entrance test है. So if you want to inquire or enroll in this batch, you can call on the numbers on the screen. ठीक है, लिंक्स में लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखी है, तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट दिस पर्टिकुलर बैच. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस सेट एंड दिस इज अ अमेजिंग सेट, राइट? इसमें आपको रैंकिंग का भी फ्लेवर मिलेगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का भी फ्लेवर मिलेगा, इसमें नंबर ब्रेक करने का भी फ्लेवर मिलेगा. एवरीथिंग इज देयर इन दिस पर्टिकुलर सेट. अ लॉट ऑफ एनालिटिकल फ्रेमवर्क इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर सेट. So let's start with a very standard practice. First, pause this video, try this set yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Right? So I hope you have tried this set. I hope you got this one. But नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है. Let's start analyzing this. Let's start solving this. तो यहाँ पे क्या बोलता है? There are 6 countries: China, India, Indonesia, Japan, Pakistan and South Korea, right? There are 6 countries. They participated in a sports tournament which comprised of 10 events. For each event, the countries that stood first, second, and third were awarded a gold medal, a silver medal, and a bronze medal, respectively. The final standing of the countries in the tournament were calculated as follows. So basically ये 6 कंट्रीज हैं, इन्होंने पार्ट ले रखा है. एंड टोटल आपके पास कितने इवेंट्स है? 10 इवेंट है. और हर इन ईच ऑफ द 10 इवेंट्स देयर आर बेसिकली 3 स्टैंडिंग्स: गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल. तो ओवरऑल अक्रॉस द 10 इवेंट्स वी आर प्रिटी श्योर कि हमारे पास टोटल 10 गोल्ड मेडल्स है, 10 सिल्वर मेडल्स है और 10 हमारे ब्रॉन्ज मेडल है जो इन कंट्रीज को मिले. नेक्स्ट, the final standings of the countries, right? The final standings of the countries in the tournament were calculated as follows. तो फाइनल स्टैंडिंग का कैलकुलेशन समझा रखा है. क्या दिया हुआ है? द कंट्री विद द हायर नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स वॉज प्लेस हायर. तो जिस भी कंट्री का नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स ज्यादा होगा, राइट, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ब्रॉन्ज एंड सिल्वर, जिसका गोल्ड ज्यादा होगा वो लिस्ट में ऊपर होगा. If two or more countries have the same number of gold medals, the country with a higher number of silver medals was placed higher. तो प्रायोरिटी ऑर्डर बेसिकली सेट हो रही है कि प्रायोरिटी हम बेसिकली गोल्ड मेडल्स को देंगे. जिसका गोल्ड वाला नंबर सबसे ज्यादा होगा वो कंट्री ऊपर आएगी स्टैंडिंग्स में. बट लेट्स से इफ देयर अराइजेस सिचुएशन जहां पे दो कंट्रीज का क्या हो जाए, नंबर ऑफ गोल्ड मेडल सेम हो जाए, इन दैट केस विल लुक एट द नेक्स्ट medals, right? Next set of medals, that is silver medals. So silver medals come next in the priority. So then on that scenario, जिनका silver वाला number ज्यादा होगा, that country will be placed higher. Now there could also be a situation जब क्या हो जाए, आपका ब्रॉन्ज सिल्वर वाला भी सेम हो जाए. तो उसने आगे जाके डिस्क्राइब करा है, if two or more countries have the same number of gold medals and the number of silver medals, the country with a higher number of ब्रॉन्ज मेडल्स वॉज प्लेस हायर. तो अगर सिल्वर भी बराबर हो गया, गोल्ड भी बराबर हो गया, तो हम ब्रॉन्ज का नंबर देख रहे होंगे. ठीक है. एंड क्या तीनों बराबर हो सकता है? नहीं हो पाएगा. उसने आगे जाके एक्चुअली समझा दिया है. नो टू कंट्रीज हैड द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल. तो तीनों कभी भी सेम नहीं होगा, राइट? ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दो कंट्रीज का गोल्ड भी बराबर है, सिल्वर भी बराबर है और आपका ब्रॉन्ज भी बराबर है. So that final situation is not going to happen. हो सकता है गोल्ड बराबर हो, सिल्वर बराबर हो, but then there will be differences in the number of bronze medals. That is the initial paragraph, and now we have some additional conditions. So let's switch to the next slide and we'll start making a table. और यहाँ पे हम इनके medals के number निकालना चाहते हैं, right? So what I've done is I have formed a table. इस टेबल में हमारे पास सारी कंट्रीज लिखी हुई है, 6 कंट्रीज है, एंड गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स के नंबर हम यहाँ पे फिल करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. एंड एक हमें स्टार्टिंग से आइडिया है कि टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इज 10, टोटल सिल्वर इज 10 एंड टोटल ब्रॉन्ज इज ऑल्सो 10 बिकॉज देयर वर अ टोटल ऑफ 10 इवेंट्स. नाउ
इनिशियल वाला पार्ट गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज की जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो आई होप अपने को क्लियर है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. So let's read the additional conditions. So first point, South Korea was the only country to win an equal number of gold, silver and bronze medals, whereas Pakistan was the only country to win exactly one gold medal. So दो condition है only के साथ लिखे हुए हैं. Let's be very clear about this. South Korea was the only country to win an equal number of gold, silver and bronze medals. तो South Korea का उसने बोल दिया कि gold, silver and bronze ये तीनों बराबर है. So I have simply gone ahead and like written x, x and x. नंबर क्या है मुझे नहीं पता ना, बट अब फिलहाल मैंने x लिख के छोड़ दिया. एंड दिस सिचुएशन इज गोइंग टू हैपन ओनली फॉर साउथ कोरिया कि उसका तीनों हमारे मेडल्स का जो काउंटिंग है, टैली है, वो क्या है, इक्वल है. ठीक है. एंड पाकिस्तान वाज द ओनली कंट्री टू विन एग्जैक्टली वन गोल्ड मेडल. तो पाकिस्तान इज द सोल कंट्री, इज द ओनली कंट्री जिसका गोल्ड में नंबर क्या आएगा, वन आएगा. ओनली कंट्री टू हैव वन गोल्ड मेडल का मतलब बाकी किसी भी कंट्री का अब तुम्हें गोल्ड में वन नहीं दिखेगा. क्लियर है ये बात. नेक्स्ट, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया. सेकेंड पॉइंट, चाइना वॉज नॉट लास्ट इन द फाइनल स्टैंडिंग्स. सो चाइना इज नॉट लास्ट इन द फाइनल स्टैंडिंग्स. And the number of gold medals won by China was the same as the number of bronze medals won by India. तो चाइना का number of gold medals, this value, right, is the same as the number of bronze medal won by India. India का bronze, this value. तो ये दोनों बराबर है. कुछ लिख लेते हैं इसके लिए. Let's say अगर A है, this is also going to be A. So that is the second point for us. Then every country won at least one silver medal and no country won more than 3 gold medals. अच्छा, अब ये मिनिमम सेट कर रहा है गोल्ड एंड सिल्वर पे, मिनिमम मैक्सिमम. एवरी कंट्री वन एटलीस्ट वन सिल्वर मेडल. तो सिल्वर में हर कंट्री का एटलीस्ट वन तो होना ही चाहिए. ग्रेटर देन इक्वल टू वन लिख लेते हैं. इस पूरे कॉलम में जो भी वैल्यू आएगी वन या वन से ग्रेटर होगी. एंड नो कंट्री वन मोर देन 3 गोल्ड मेडल्स. तो गोल्ड का नंबर हमारा मैक्स 3 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 3. ऑल्सो इफ यू नोटिस, वन नहीं हो सकता है, वो हम पहले स्टैब्लिश कर चुके हैं. तो 3 हो सकता है, 2 हो सकता है एंड मे बी ऑल्सो 0 भी हो सकता है. ठीक है. तो ये हो गया हमारा थर्ड कंडीशन. Fourth point, the country that won the maximum total number of medals was not in the top 3 in the final standings. Maximum number of medals. Now, that doesn't have to belong to gold. Total number of medals की जो काउंटिंग होगी वो अभी अपने को नहीं पता. प्लस गोल्ड प्लस ब्रॉन्ज प्लस सिल्वर, ये तीनों का जो एडअप होगा, ठीक है, जिस कंट्री का मैक्सिमम होगा, द कंट्री दैट वन द मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वाज नॉट इन द टॉप 3 इन द फाइनल स्टैंडिंग. So even though that country that has the total maximum number of medals, but उसको टॉप 3 में नहीं पहुंचना चाहिए. ठीक है. So that is the condition what we have. अभी इसको हम बहुत ज्यादा कुछ लिख नहीं सकते. I'll keep this on hold. Maybe ये चेक करने वाले कंडीशन ज्यादा है. Fifth point, the country that finished in the last place in the final standing won 4 bronze medals. तो अभी ये कह रहा है कि ये वाली जो कंट्री है जो लास्ट आएगी, राइट, जो कंट्री आपकी फाइनल पोजीशन जिसकी लास्ट आएगी, दैट कंट्री हैज वन 4 ब्रॉन्ज मेडल्स. तो जो भी कोई कंट्री लास्ट होगी, लिख के रख लेते हैं कहीं पे, जो भी कंट्री लास्ट होगी उसका ब्रॉन्ज में कितना आएगा और बाकी दोनों में कितना आएगा वो नहीं पता, बट दैट कंट्री विल हैव 4 इन द ब्रॉन्ज कैटेगरी. राइट. सो फिफ्थ पॉइंट भी हमारा डन है. नेक्स्ट, इंडिया वन द सेम नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स एज जापान. ठीक है, but was placed immediately below Japan in the final standing. So India won the same number of gold medals as Japan. तो यहाँ का नंबर मान लो B है, तो जापान का भी नंबर ये गोल्ड वाला कितना होगा आपका, B होगा. सेम नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स एज जापान, बट वॉज इमीडिएटली बिलो जापान इन द फाइनल स्टैंडिंग. तो फाइनल स्टैंडिंग में तुम्हारा जापान आना चाहिए और उसके तुरंत बाद हमारा और कोई कंट्री नहीं आनी चाहिए, उसके तुरंत बाद हमारा इंडिया आना चाहिए. तुरंत से नोटिस करोगे ये दोनों तो सेम है, तो मे भी आगे जाके आपका डिसाइड हो रहा होगा. मे बी सिल्वर पे हो रहा होगा, मे बी ब्रॉन्ज तक जा रही होगी कहानी, बट जापान के इमीडिएटली बिलो आपका फाइनल स्टैंडिंग्स में आपकी इंडिया आनी चाहिए. ओके, so this statement is also done. The seventh point, the country that was in the first place in the final standing won an equal number of bronze and silver medal. तो जो भी कंट्री हमारा फर्स्ट आएगी उसका ब्रॉन्ज एंड सिल्वर क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है. वी डोंट नो दैट कंट्री, वो भी कौन सी कंट्री, वो अभी उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ये जो भी कंट्री आपकी फर्स्ट पे आएगी, ठीक है, उसका ब्रॉन्ज एंड सिल्वर का नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए.
नाउ लेट्स स्टार्ट एनालाइजिंग द थिंग्स, और एक एक करके पॉइंट्स को देखना स्टार्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपका बन के आता है. नाउ वेयर डू आई बिगिन दिस विथ? तो सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट, ये वाले से स्टार्ट करते हैं. द लास्ट पोजीशन वाली कंट्री, ठीक है, कि वो कौन सी हो सकती है, राइट? मे बी उसकी पॉसिबिलिटीज हो, बट वो हम चेक करना स्टार्ट करेंगे कि कौन हो सकता है. तो सबसे पहले कैसे चेक करें? एक एक करके आप इवेलुएट करना स्टार्ट करो. कैन दिस बी दैट कंट्री जो लास्ट आएगी? बिकॉज लास्ट वाले के साथ एक ब्रॉन्ज में 4 भी आना चाहिए, तो वो रख रख के चेक करना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो चाइना. चाइना इज नॉट द लास्ट कंट्री, तो चाइना को तो मेरे को चेक भी करना ही नहीं चाहिए. ओके, सो दिस कैन नॉट बी चाइना. नाउ कैन इट बी इंडिया? अगर इंडिया हुआ तो ब्रॉन्ज में उसका नंबर 4 आ जाएगा, मतलब ए की वैल्यू 4 है. बट अगर ए की वैल्यू 4 है तो यहां पे भी 4 है. बट इस कॉलम में पता है मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है? सिर्फ 3 हो सकती है. हेंस इंडिया कैन नॉट बी दैट कंट्री. अच्छा, इंडोनेशिया में तो तीनों वैल्यूज तुम्हारी अभी वेकेंट है, सो इंडोनेशिया कैन डेफिनेटली बी वन ऑफ दोस कंट्रीज. ठीक है, लाइक दैट कंट्री विच इज लास्ट. तो इंडोनेशिया तो अभी होल्ड पे रखना चाहिए अपने को. व्हाट अबाउट जापान? जापान क्या हमारी लास्ट कंट्री हो सकती है? नहीं हो सकती ना, क्योंकि ऑलरेडी हमें ये तो पता ही है कि जापान को डेफिनेटली इंडिया से ऊपर होना है. सो जापान कैन नॉट बी दैट लास्ट कंट्री. जापान भी चली गई. अभी तक सिर्फ इंडोनेशिया पॉसिबल है. पाकिस्तान हो सकता है क्या? यस, पॉसिबल है. बिकॉज अभी हम ऐसा डायरेक्टली तो नहीं बोल पा रहे. हाँ, हो सकता है यहाँ पे 4 आ जाए, कोई प्रॉब्लम तो ऐसे दिख नहीं रही मेरे को. तो पाकिस्तान कैन ऑल्सो बी दैट कंट्री. व्हाट अबाउट साउथ कोरिया? कैन साउथ कोरिया बी दैट कंट्री? नहीं. क्यों? क्योंकि अगर साउथ कोरिया को होना है तो यहाँ एक्स का वैल्यू फिर 4 आ जाएगा. बट अगर ये एक्स 4 है तो ये तीनों जगह फिर आपका 4 आएगा. बट ये भी तो 4 हो जाएगा, और इस कॉलम में मैक्स वैल्यू क्या होती है आपकी? 3 होती है. हेंस आई कैन एक्चुअली गो एंड से कि ये जो हमारी लास्ट वाली कंट्री है विद टोटल ऑफ 4 ब्रॉन्ज मेडल्स, वो हमारी या तो इंडोनेशिया होगी, ये तो हमारी पाकिस्तान होगी. ठीक है, यहां तक की कहानी सबको क्लियर होनी चाहिए. अच्छा, अब हम चेक कैसे करेंगे? हमें दोनों पॉसिबिलिटीज चेक करना चाहिए. बट जैसे इंडोनेशिया में तो एक भी नंबर नहीं लिखा है ना, एटलीस्ट पाकिस्तान में कुछ तो कंडीशन ऑलरेडी प्लेस्ड है कि पाकिस्तान का गोल्ड में क्या है आपका? 1. तो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं. तो लेट्स चेक. तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो अगर मैंने पाकिस्तान को लास्ट वाली कंट्री बोला, उसका मतलब यहां पे इसका टोटल कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4 हो जाएगा, राइट? इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? 4 हो जाएगा. नाउ पाकिस्तान हैज टू बी दैट लास्ट कंट्री. क्लियर? नाउ अब पाकिस्तान का अगर यहां पे ब्रॉन्ज हमने 4 रखा, तो हमारे बाकी वैल्यूज क्या अरेंज हो पाएंगे, क्या नहीं हो पाएंगे, ये हमें चेक करना पड़ेगा. तो याद रखना, पाकिस्तान विद एग्जैक्टली 1 गोल्ड मेडल हैज टू बी इन द लास्ट. ठीक है, स्टैंडिंग बिल्कुल लास्ट होनी चाहिए. अच्छा, अब जरा अगर हम इवेल्युएट करना स्टार्ट करें, तो बात यह है कि यहां पे जितनी भी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, ये जो 5 वैल्यूज हैं, ठीक है, इनको आपको क्या वैल्यूज देनी पड़ेंगी? सबसे पहले, नन ऑफ देम कैन बी एग्जैक्टली इक्वल टू 1. नन ऑफ देम एग्जैक्टली 1 हो सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री टू हैव 1. नाउ कैन एनी ऑफ दीज वैल्यूज बी 0? नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज पाकिस्तान का 1 है और आप यहां पे 4 लिख के, जब आप 4 की पॉसिबिलिटी ट्राई कर रहे हो, देन बेसिकली आप ये अजम्पशन के साथ चल रहे हो कि पाकिस्तान इज द लास्ट अंडरस्टैंडिंग. अगर तुमने इन रिमेनिंग 5 वैल्यूज में से किसी भी वैल्यू को 0 लिखा, तो वो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड मेडल पाकिस्तान से नीचे हो जाएगा. बट देन दैट इज गोइंग टू कॉन्ट्राडिक्ट द इनिशियल अजम्पशन. इसलिए अगर पाकिस्तान यहाँ पे 4 पे है और इसका 1 है, तो किसी का 0 नहीं हो सकता, किसी का ऑटोमेटिकली 1 नहीं हो सकता. तो फिर हम ये डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हैं कि बाकी सारी कंट्रीज का मिनिमम तो 2 होना पड़ेगा और एक मैक्स 3 हो सकता है. बट प्रॉब्लम ये है, इस पूरे कॉलम का जो एडिशन है वो टोटली मिला के कितना होना चाहिए आपका? 10 होना चाहिए. अब इस 1 के बाद अगर 1 2 3 4 एंड 5 वैल्यूज में तुम्हें हर चीज मिनिमम 2 रखनी है, तो उन्हीं 5 वैल्यूज का एडिशन मिनिमम ही 10 रहेगा, और उसके बाद ये 1 से 11 आ जाएगा. सो देयर लाइज द कॉन्ट्रडिक्शन कि इस कॉलम का जो टोटल होना चाहिए वो मिनिमम से मिनिमम 11 आना चाहिए था, बट दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 10. हेंस हेंस द इनिशियल अजम्पशन इज एक्चुअली रॉन्ग. पाकिस्तान इज नॉट दैट कंट्री जो कि क्या है आपकी लास्ट पोजीशन पे. तो दैट वाज द फ्लो जिसके बेस पे हमने ये
डिसाइड कर लिया है हु इज द लास्ट कंट्री इन द फाइनल स्टैंडिंग्स, इंडोनेशिया। ठीक है, सो इंडोनेशिया का यहां पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक्चुअली इंडोनेशिया इज द लास्ट कंट्री। ठीक है, सो फार सो गुड। तो इंडोनेशिया का हमारा वहां पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, अब हम और क्या लाइक चेक करना स्टार्ट करें। कैन वी डू समथिंग अबाउट दिस, लाइक एक्स फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि एक्स में क्या नंबर तुम्हारा जाने वाला है। ठीक है, अब उसका नेक्स्ट पूरा सीक्वेंस स्टार्ट होगा तो उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। सबसे पहले यहां से समझना, ये जो एक्स है ना तुम्हारा, ये यहां पे भी तो है, एंड यहां के साथ इसकी कंडीशन सेट हो चुकी है दैट हैज टू बी अ मिनिमम ऑफ 1। बट यहां पे ये जो x है फिर वो इस 1 के बराबर नहीं हो सकता, ये भी पता है। तो हमारे जो x की वैल्यू है 1 नहीं हो सकती है, और 1 से कम ऊपर होना चाहिए, इक्वल या ऊपर होना चाहिए, राइट, और मैक्स 3 होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व करके क्या हमें ये नहीं लगता कि हमारी जो x की वैल्यू है या तो 2 आएगी या तो वो क्या आएगी, 3 आएगी। देर आर ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज फॉर x, राइट। आइदर x हमारा 2 होगा या फिर हमारा x क्या होगा, 3 होगा। x ना 1 हो सकता है ना x हमारा 0 हो सकता है। तो x की वैल्यू 2 एंड 3 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्चुअली में ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि हम x को क्या ले सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद लाइक बिगर पॉसिबिलिटी। मान लो मैंने x को क्या दिया, तो 3 इन ईच ऑफ द 3 कैटेगरीज, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। तो हमने क्या कर दिया, 3 फिट कर दिया। अब आपको क्या सोचना है एक्चुअली में कि आपको कुछ ए बी वगैरह की वैल्यूज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, आपको ये सारी चीजें एक्चुअली में इवैल्यूएट करनी पड़ेंगी, राइट। अच्छा, और मे बी जैसे अगर हम 3 के साथ ये भी पॉसिबिलिटी अगर सोचे, बिकॉज वी कैन हैव मल्टीपल लॉजिक्स टू दिस। अगर हम यहाँ पे 3 के साथ वैल्यू एक्चुअली में अगर नोटिस करें, राइट, यहाँ पे 3 4 हो चुका है, इसका टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वुड बी व्हाट, 9, राइट। इसका टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वुड बी एक्चुअली 9। 9 इज लाइक लुकिंग अ वेरी बिग नंबर। तो अभी सोचना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहां से ना। अब हम यहां से ना ये भी सोचना एक्चुअली स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया को जो हमने बोल दिया कि वो लास्ट है, तो वो लास्ट किस बेस पे हो रही होगी, राइट, वी शुड हैव रिटन दैट आल्सो। तो इंडोनेशिया का अगर नोटिस करो, इसका जो ब्रॉन्ज मेडल्स है वो क्या है, 4 है, राइट। नाउ इंडोनेशिया का ये जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा, इसको लिखने पे फोकस कर सकते हैं, बिकॉज दैट कैन एक्चुअली बी रिटन एज लाइक यूनिक। नाउ इंडोनेशिया का ये जो नंबर होगा, देखो पाकिस्तान के बराबर तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, बिकॉज वी कैन नॉट रिपीट अ 1, राइट। 1 से ऊपर हम नहीं जा सकते, बिकॉज 1 से अगर हम ऊपर जाएंगे तो फिर पाकिस्तान से बड़ा हो जाएगा उसका गोल्ड मेडल, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज फिर इंडोनेशिया पाकिस्तान से ऊपर आने लगेगी स्टैंडिंग में। एंड हमने तो बोल दिया है कि इंडोनेशिया इज द लास्ट कंट्री। सो इंडोनेशिया का बेसिकली डेफिनेटली हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या आने वाला है, आपका 0 आने वाला है, राइट। सो दैट इज व्हाट वी कैन एक्चुअली फिट। नाउ व्हाट अबाउट दिस 3, ये जो भी हमने 3 यहाँ पे एक्चुअली में लिखा था, इसका हम यहाँ पे यूज क्या करना चाहेंगे, बिकॉज जैसे आप यहाँ पे 3 लिखते हो तो अब हम कुछ ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज वगैरह फिगर आउट कर सकते हैं। और देखने में आपको लगना भी चाहिए साउथ कोरिया का ना नंबर बहुत बड़ा आपने बना लिया है, एंड देयर वर कंडीशंस जो कि बोलती हैं द कंट्री that won the maximum total number of medals was not in the top 3 in the final standing। तो अभी लाइक गट फीलिंग से इनिशियली लगता है यार साउथ कोरिया का नंबर भी बड़ा हो चुका है और गोल्ड का भी नंबर बड़ा है, सो हो सकता है वो कंडीशन कॉन्ट्रडिक्ट हो, बट आप गट फीलिंग से नहीं जा सकते, you'll have to like clearly हैव एन आर्ग्यूमेंट फॉर दैट कि वो हो सकता है नहीं हो सकता। तो लेट्स ट्राई दिस। सो मान लो यहाँ पे मैंने 3 3 3 लिखा, बिकॉज उसकी 2 ही पॉसिबिलिटी थी, 2 3। सो अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉलम में टोटल एडिशन कितना बनना चाहिए तुम्हारा, 10 बनना चाहिए। अभी करेंटली तुम्हारे पास क्या है, 3 + 1 4 है। तो बचा क्या तुम्हारे पास, a + 2b। सो लेट्स राइट दैट डाउन, a + 2b एंड दैट वैल्यू विल बी लेफ्ट एज 6। a + 2b तुम्हारा क्या आ गया, 6 आ गया। अब यहां से ए और बी की क्या पॉसिबल वैल्यूज है, ये याद रखना कि हमारा 1 हम ले नहीं सकते, राइट, वी कैन नॉट हैव अ 1 इन एनी केस। तो हमारा 1 तो नहीं आएगा। नाउ सबसे पहला केस मेरे को जैसे ये दिख रहा है, मैक्सिमम जो मेरा ए हो सकता था 3 हो सकता था, बट अगर हम ए को 3 रखेंगे तो 2b = 3 बचेगा, तो बी का होल नंबर नहीं आएगा, तो 3 तो डेफिनेटली ए में नहीं जाने वाला है इसके हिसाब से। तो अब हम अगला क्या रख सकते हैं, मे बी 2 रख सकते हैं।
ए को अगर मैंने 2 रखा तो 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, तो b की वैल्यू भी फिर क्या आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी. सो दैट इज वन पॉसिबल कॉम्बिनेशन. अब हमें एक्चुअली में चेक करना पड़ेगा कि ये कॉम्बिनेशन हो भी पाएगा कि नहीं पाएगा. तो ए और बी को 2 2 रखना है, राइट. तो ए को मान लो यहाँ 2 रखा, ए मेरा यहाँ 2 आया, बी यहाँ 2 आया, बी मेरा यहाँ पे भी 2 आ गया. तो ये है हमारी सेट ऑफ वैल्यूज. नाउ प्रॉब्लम ये है, अब यहां से आपको समझना पड़ेगा, प्रॉब्लम ये है कि अब अगर मैं अपने गोल्ड वाले टैली को देखूं, अगर मैं अपने गोल्ड वाले टैली को देखूं, तो साउथ कोरिया का 3 इज एक्चुअली द मैक्सिमम पॉसिबल, राइट. तो साउथ कोरिया फिर डेफिनेटली हमारी फर्स्ट पोजीशन पे है, राइट. अब ये तो क्लियर हो गया कि साउथ कोरिया डेफिनेटली फर्स्ट पोजीशन पे है. अब क्या वो फर्स्ट पोजीशन पे हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, वो हम कैसे चेक करेंगे? अगेन आई एम लुकिंग एट दिस कंडीशन. द कंट्री दैट वन द मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वाज नॉट इन द टॉप 3 इन द फाइनल स्टैंडिंग. अब पता है क्या हो रहा है, साउथ कोरिया का जो एक्चुअली में टोटल मेडल का टैली है ना, दैट इज 9 करेंटली, वो मैक्सिमम पॉसिबल है, मतलब मैक्सिमम है एक्चुअली में, लाइक अमंग्स द अदर कंट्री. अब ये कैसे बोल रहा हूं, सोच के देखना. देखो यहां के गोल्ड के नंबर तो तुम्हें ऑलरेडी फिगर्ड आउट है. अच्छा एक चीज अब ये रियलाइज करना, इनमें 1 2 3 4 5 5 नंबर है, यहाँ 3 है, तो तुम्हारे पास कितना बचा है? 7 बचा है. तो तुम मैक्स टू मैक्स किसी एक वैल्यू को यहां पे कितना डाल सकते हो? मैक्स टू मैक्स कम से कम अगर तुम 4 वैल्यूज को 1 1 1 दोगे तो 4 + 3 7, तो मैक्स टू मैक्स तुम कोई 3 बना सकते हो ब्रॉन्ज, सॉरी सिल्वर में. सिल्वर में कोई भी नंबर तुम्हारा अब 3 से ऊपर जा नहीं सकता, राइट. या मैक्सिमम तुम 3 डाल सकते हो कहीं पे भी. अच्छा ब्रॉन्ज में क्या हिसाब किताब चल रहा है? 4 + 2 6 + 3 9. तो ब्रॉन्ज में तुम मैक्स टू मैक्स कहां पे कुछ भी डाल सकते हो? 1. तो तुम्हें बस ये इवैल्यूएट करना है कि साउथ कोरिया का जो करंट टोटल दैट इज 9 है, क्या इससे ऊपर कोई जा सकता है? जा सकता है, नहीं जा सकता? तो देखो जैसे चाइना फॉर एग्जांपल, अभी चाइना को आप तुम मैक्स कितना लेके आ पाओगे? 2 + 3 + 1 6 ही तो ले जा पाओगे. इंडिया को भी तुम 2 + 2 + 3 7 ले जा पाओगे. इंडोनेशिया को भी आप 4 + 3 7 ले जा पाओगे. जापान को भी 2 + 3 + 1 6 ले पाओगे. पाकिस्तान को भी 1 + 3 + 1 आप 5 ले जा पाओगे. तो आप कुछ भी एडजस्ट कर लो बाकी जगह वैल्यूज, वन थिंग इज फॉर श्योर कि साउथ कोरिया का फिर मैक्सिमम टोटल मेडल्स आएगा. तो वहां पे आपका कॉन्ट्रडिक्शन है. कॉन्ट्रडिक्शन इस बात का है, इसने बोला था द कंट्री दैट वन द मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वाज नॉट इन द टॉप 3. तो हमारी ये जो कंट्री है दैट इज साउथ कोरिया, वो तो टॉप गोल्ड के हिसाब से भी टॉप पे है, तो टॉप एट द बिगिनिंग है आपकी मिडिल टैली में, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स है, तो वो कॉन्ट्रडिक्ट कर जा रहा है. हेंस ऑल आर इनिशियल assumptions that is यहाँ पे 3 3 3 होगा, वो गलत हो गया. सो आई विल गो एड एंड रिमूव दैट. अब बाकी जब जैसे आप ये 3 3 3 हटा दोगे, तुम्हारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी, दैट इज 2 2 एंड. तो लेट्स रिमूव दिस. ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे फिगर आउट कर लिया है कि हमारे x की वैल्यू क्या होने वाली है? 2 होने वाली है, राइट. सो लेट्स टेक x as 2 2 2 एंड, राइट. ये होगी हमारी सिचुएशन. ऑल्सो हम क्या कर सकते हैं, अब हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी. ये जब हमने 2 डाला तो 2 + 1 से 3 हो जाएगा. तो अब की बार a + 2b, ये 6 ना होके ये वैल्यू चढ़ा देते हैं, a + 2b की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी. नाउ आई हैव टू अगेन फिगर आउट व्हाट कैन बी मेड. सो एक पॉसिबिलिटी तो दिख रही है कि a को मैं क्या रख लूं, जैसे मे बी अगर हम 3 रख सकते हैं, अगर हम a को 3 रखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो b मेरा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, राइट. दैट इज वन पॉसिबिलिटी. ए अगर मैंने 3 रखा तो बी क्या आ जाएगा मेरा? 2 आ जाएगा. ओके और क्या पॉसिबिलिटी है? ए अगर हम 2 रखें, तो 2 तो हम रख नहीं सकते, राइट. देखो ए अगर मैंने 3 रखा तो दिक्कत है मेरी, क्योंकि ए को अगर मैंने 3 रखा तो बी मेरा 2 आया, दैट इज वन पॉसिबिलिटी. ये मैं इसमें ये भी नोटिस कर रहा हूं कि ये हमेशा इवन नंबर है, और इवन प्लस समथिंग ऑड आ रहा है, तो इसको हमेशा ऑड होना पड़ेगा. तो ए की मेरी वैल्यू फिर क्या आएगी? या तो 3 आएगी जो कि सेटिस्फाई नहीं होने दे रहा है, या फिर ए की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी? अगला 1. बट 1 तो हो नहीं सकता ए का वैल्यू, इस कॉलम में कभी भी 1 हमारा आता नहीं है. हेंस 1 के साथ कोई भी केस मेरे को नहीं मिलेगा, राइट. सो दैट मीन्स आई हैव ऑल द वैल्यूज इन प्लेस. हमारी वैल्यूज एक्चुअली में फिगर आउट हो चुकी हैं. तो अब हम a को 3 प्लग इन कर देंगे और b को हम 2 प्लग इन कर देंगे, राइट. सो a 3 एंड b 2 दिस. तो a मेरा 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, यहाँ पे भी मेरा 2 हो गया.
तो आई हैव ऑल द वैल्यूज ए बी और एक्स की। थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको क्लियर कर सकते हैं, राइट। जस्ट इट्स रिमूव दिस पार्ट। राइट, सो ये है हमारे पास करंट नंबर्स। नाउ अब हम यहां से क्या करेंगे, अब सबसे पहले इसने एक कंडीशन दिया था ना, जैसे अब हमें आइडिया है कि एक्चुअली चाइना टॉप पे है, बिकॉज उसका गोल्ड का नंबर क्या है, सबसे हाईएस्ट है। अभी जो चाइना का 3 है इन गोल्ड, इट इट टेक्स चाइना टू द हाईएस्ट एट द टेबल। और हाईएस्ट वाले के साथ कंडीशन क्या था हमारा, द कंट्री दैट वाज इन द फर्स्ट प्लेस इन द फाइनल स्टैंडिंग वन एन इक्वल नंबर ऑफ ब्रॉन्ज एंड सिल्वर मेडल। तो उसमें स्पेसिफिकली बोल रखा था जिसका भी फर्स्ट प्लेस पे आएगी, जो भी कंट्री फाइनल स्टैंडिंग में, तो वो तो डेफिनेटली चाइना आएगी, बिकॉज उसका गोल्ड में हाईएस्ट है और कोई कंटेंटर तो है नहीं। वन एन इक्वल नंबर ऑफ ब्रॉन्ज एंड सिल्वर मेडल्स, तो क्या हो सकता है। अब यहाँ पे नोटिस करना, ये दोनों नंबर तुम्हारा सेम होना है, राइट। ये हमारा दोनों नंबर सेम होना है, तो ये क्या दे सकते हो अभी इसको। अब नोटिस करो, तुम्हारा यहाँ मिनिमम 1 होना चाहिए, राइट। सो अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। बट क्या ये 2 हो सकता है, वो इसके हिसाब से देखो, बिकॉज इस कॉलम का एडिशन भी तुम्हारा 10 बनना चाहिए। 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो इसमें मैक्सिमम स्कोप ही तुम्हारा 1 का है। सो वही डेफिनेटली हमारी पॉसिबिलिटी क्या होनी पड़ेगी, फिट होनी पड़ेगी। तो ये हमारा 1 हो जाएगा एंड ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। सो बोथ ऑफ दीज वैल्यूज विल हैव टू बी 1 ईच। क्लियर, तो ये हमारे 1 हो गए, ये हमारे 1 हो गए, और इसके साथ ही ये बाकी दोनों जगह भी क्या चला जाएगा हमारा, 0 एंड। नाउ वी हैव टू फिगर आउट द वैल्यूज फॉर सिल्वर। और क्या है हमारे पास कंडीशन, जैसे कि अभी नोटिस करो, करंट टैली के हिसाब से, करंट टैली के हिसाब से वो भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। चाइना का हमारा टोटल नंबर ऑफ मेडल्स क्लियर है, 3 + 1 + 1 दैट इज 5, बट चाइना विल बी एट द फर्स्ट पोजीशन, इस चीज में कोई हमारा डाउट नहीं है, ठीक है, बिकॉज उसका हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स है। अच्छा, हमें ये भी पता है कि हमारा एक्चुअली में इंडोनेशिया विल बी एट द लास्ट, तो ये हमारा 6th पोजीशन होने वाला है। सो इंडोनेशिया विल बी एट द 6th पोजीशन। हाँ, इसके बाद फिर हमारा पाकिस्तान में भी क्लैरिटी होनी चाहिए हमें, राइट। पाकिस्तान का हमारा 1 है, तो ये भी हमारा डेफिनेटली क्या होगा, ये हमारा 5th पोजीशन पे होगा। अब इसके बाद अगर नोटिस करोगे तो इंडिया है, जापान है और साउथ कोरिया है, राइट। इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया, ये नंबर बचे। तो इनमें हमारा कुछ स्टैंडिंग वगैरह होना चाहिए, सच दैट कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए कि जापान के जस्ट नीचे क्या आना चाहिए, तुम्हारा इंडिया आना चाहिए। सो विल हैव टू स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द नंबर्स। नाउ अब यहाँ पे जैसे सिल्वर में नंबर अगर हम ब्रेक करेंगे, जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या है बचा हुआ है, जैसे 1 + 2 ऑलरेडी हमारे पास 3 है, और 4 कंट्रीज का मिला के 7 है, 1 2 3 एंड 4। 4 कंट्रीज का एडअप करके हमारा कितना बनना चाहिए, 7 बनना चाहिए, राइट। नाउ अब नोटिस करो, तो मैं हर एक वैल्यू को मिनिमम तो 1 बनाना ही है, तो मैं ये इवेलुएट कर लेता हूं कि कोई भी एक वैल्यू मैक्सिमम कितना जा सकता है। तो कोई एक चीज को अगर मैक्सिमाइज करना है मेरे को बची 4 वैल्यूज में से, तो मेरे को समझ में आ रहा है बाकी 3 जगह 1 रखेंगे और एक जगह क्या रखना पड़ेगा, 4। तो अगर मैं हिट एंड ट्रायल करना स्टार्ट करूंगा किसी एक कंट्री के लिए, फॉर एग्जांपल लेट्स से जापान के लिए करा, क्योंकि जापान को इंडिया से डेफिनेटली ऊपर होना है, तो जापान में मैक्स टू मैक्स मेरा क्या जा सकता है, 4 4 3 2 1 ऐसे नंबर जा सकते हैं। 1 तो नहीं जाएगा पॉसिबली, राइट, बिकॉज फिर वो इंडिया के नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, बट ठीक है, फेयर इनफ। लेट्स स्टार्ट एनालाइजिंग दिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, मान लो कि क्या मेरा जापान का नंबर 4 हो सकता है कि नहीं। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर जापान का नंबर 4 हुआ तो यहाँ पे 1 1 और 1 आ जाएगा, राइट, ये सारी जगह 1 आ जाएगा। अब आपको बस ये चेक कर लो कि जापान के जस्ट नीचे इंडिया आएगा या फिर नहीं आएगा, राइट। अब इन तीनों कंट्रीज में जिनका 2 2 2 था, उसमें जापान तो ऑब्वियसली ऊपर रहेगा, बिकॉज 2 के बाद उसका हाईएस्ट नंबर है सिल्वर में। बट प्रॉब्लम यह है, बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया, साउथ कोरिया का सिल्वर का नंबर हमारा इंडिया से ज्यादा है, तो जापान के जस्ट नीचे साउथ कोरिया आ जाएगी और उसके नीचे इंडिया आएगी, बट दैट सिचुएशन शुड नॉट हैपन, राइट, वो पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। हेंस वी कैन कंक्लूड कि जापान का हमारा यहाँ पे 4 नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं, 4 नहीं हो सकता क्योंकि नीचे आते रहेंगे, अपने आप अपने को नंबर मिल जाएगा। तो जापान का हमारा वहां पे लेट्स से 4 नहीं आया। कैन जापान हैव अ 3 इन दिस, ठीक,
याद रखना इक्वल नहीं रख सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि जापान एंड इंडिया में लाइक जापान के जस्ट नीचे इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉन्ज आ सकती, नहीं होगा। इक्वल के साथ कभी भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज अगर गोल्ड भी बराबर है और सिल्वर भी बराबर है तो बात हमेशा ब्रॉन्ज पे पहुंच जाएगी। बट ब्रॉन्ज में आपको क्लियर कट है कि इंडिया का नंबर हमारा जापान से बड़ा है। तो अगर कभी भी तुमने सिल्वर को सेम रखा तो इंडिया और जापान में इंडिया ऊपर आएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारा जापान से हमेशा इंडिया का सिल्वर कम आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मान लो 3 है, ठीक है। अब 3 के साथ हम इंडिया में मान लो यहाँ पे क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। 1 क्यों नहीं रख सकते? बिकॉज अगर तुम 1 रखोगे तो हमारा उससे भी ऊपर साउथ कोरिया पहुंच जाएगा, तो जापान आ जाएगी, फिर साउथ कोरिया आ जाएगा, फिर इंडिया आएगी। अगेन नॉट पॉसिबल। तो 3 के साथ अगर बनना है तो एक ही पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे क्या आ जाए, तुम्हारा 2 आ जाए, राइट वो 3 2 हो जाएगा। अच्छा और क्या हो जाएगा आपके पास, 3+2+2 4 +3 7+1 8। तो अभी मेरा बाकी दोनों जगह जाके 2 डिस्ट्रीब्यूट होना बाकी है। बट यहाँ पे फिर से एक ना कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होने वाला है। कॉन्ट्रडिक्शन इस बात का है, जैसे ओवरऑल अगर आप नोटिस करो, पाकिस्तान 5th पे है, इंडोनेशिया हमारा यहाँ पे है, ठीक है, 5th एंड 6th पोजीशन पे है। बट अगर आप स्टैंडिंग्स के हिसाब से देखोगे, फर्स्ट पे चाइना आ जाएगी, सेकेंड पे जापान आ जाएगी, सॉरी सेकेंड पे यस जापान आ जाएगी बिकॉज 2 के साथ इसका 3 है, और थर्ड पे फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा, राइट। बिकॉज भले ही तुम्हारा ये दोनों सेम है बट ब्रॉन्ज पे जब बात जाएगी तो 3 वुड बी बेटर देन 2। तो हमारा इंडिया वुड बी एट द 3rd पोजीशन, और 4th पे कौन चली जाएगी, हमारी साउथ कोरिया चली जाएगी। तो इंडिया फिर हमारी 3rd पोजीशन पे है। बट दिक्कत ये है कि इंडिया का जो टोटल मेडल टैली है अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये कितना है, 4+3 7 है, and none of these other values will be equal to 7 और उससे greater, right? जैसे 3+1+1 5 हो गया, यहाँ पे तुम 4 प्लस मैक्स टू मैक्स 2 डाल सकते हो, मैक्स टू मैक्स, तब भी 6 बनेगा। ये 5 है, ये भी मैक्स टू मैक्स 2 जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बचा ही 2 है, 3 जा सकता है, और ये 6 है। तो फिर इंडिया का हाईएस्ट मेडल टैली हो जाएगा टोटल। और हमें स्टार्टिंग में कंडीशन पता थी कि जिस भी कंट्री का मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ मेडल्स है दैट विल नॉट बी इन द टॉप 3, लेकिन इंडिया तो 3rd पोजीशन पे आ जा रहा है, हेंस वी आर having a contradiction in this case as well। तो 3 के साथ तुम्हारा यहाँ पे 2 भी नहीं आ सकता, राइट। तो अब हमारे केसेस कम हो गए और फाइनली केस है बेसिकली, राइट, क्योंकि जापान का फिर मेरा क्या हो सकता है, सबसे लीस्ट 2 हो सकता है। 1 इसलिए नहीं हो सकता फिर बिकॉज इंडिया का क्या रखोगे, उसको भी तो 1 देना पड़ेगा, बट हमने बोला है दोनों को कभी भी बराबर नहीं होना है। सो जापान का मेरा 2 हो जाएगा, एंड तुरंत से इसका नंबर इक्वल नहीं जाएगा, राइट, तो इसका हमेशा कम जाना पड़ेगा। सो इसका क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, राइट। सो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा अब इससे होगा क्या, अभी अगर मैं नोटिस करूं तो फर्स्ट तो चाइना रहेगा, जापान से बेटर फिर साउथ कोरिया आ जाएगा, तो उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। साउथ कोरिया, उसके बाद कहीं पे जापान, राइट, बिकॉज 2-2-0 है इसका, और बिकॉज जापान से इसका सिल्वर कम है तो इंडिया जस्ट उसके नीचे आ जाएगा, जैसे 2-1-3 के साथ। तो ये हो गया हमारा ऐसा कुछ मेडल टैली। लेकिन अभी भी हमारे कुछ नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट करने बचे हैं, तो हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो 4+2 ये हमारा क्या हो रखा है, आपका 6 हो रखा है, ठीक है, 6 है हमारे पास। तो बचा कितना है हमारे पास, 4 बचा है। और जो हमारी कंट्री सबसे लीस्ट पे आएगी उसका नंबर सबसे ज्यादा होना चाहिए मेडल्स का, ठीक है, सबसे जो नीचे आएगी। तो अभी नोटिस करो इनका मेडल टैली कितना पहुंच गया, अब ये सब यूनिक है, राइट। तो 3+1+1 वुड बी 5, 2+1+3 इसका एक्चुअली में 6 हो रखा है, जापान का कितना हो रखा है, 4 हो रखा है, और साउथ कोरिया का भी क्या हो रखा है, 6 हो रखा है। सो इंडोनेशिया जो कि एक्चुअली सबसे नीचे है मेडल टैली में, उसका जो टोटल मेडल का काउंट है सबसे ज्यादा होना चाहिए, राइट, उसका जो टोटल मेडल का काउंट है सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो उसको डेफिनेटली तुम्हें 6 से ऊपर लेके जाना पड़ेगा। नाउ कितना लेके जा सकते हो इंडोनेशिया का, याद रखना तुम्हें पाकिस्तान को भी कम से कम 1 तो देना ही है, राइट। तो ये 1 कम से कम आपका आना चाहिए, और इंडोनेशिया का नंबर हमारा ऊपर भी जाना चाहिए। तो सीधी सी बात है यार कि हमें इसको 6 से ऊपर ले जाने के लिए कम से कम 7 ले जाना पड़ेगा, तो 4 में कम से कम तुम्हें 3 ऐड करना पड़ेगा। तो जब तुम यहाँ 3 ऐड करोगे तब यहाँ पे 1 बचेगा जो कि मिनिमम होना चाहिए। 4 इसलिए नहीं रख सकते बिकॉज 0 यहाँ पे अलाउड नहीं है, एंड दैट कंप्लीट्स आवर फाइनल। तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल स्टैंडिंग। इंडोनेशिया का हमारा टोटल मेडल टैली पहुंच जाएगा 7 पे, पाकिस्तान का पहुंच जाएगा हमारा 2 पे। और पोजीशन वाइज अगर देखोगे तो ये हमने क्लियर कट डिफाइन कर लिया था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो हमारा सेकेंड वुड बी साउथ कोरिया, अब
थर्ड वुड बी जापान, फोर्थ वुड बी इंडिया, एंड इंडिया जस्ट हमारे जापान के नीचे लाई करेगा. Right, so now we can actually go ahead and solve all the problems. So which country won the maximum number of silver medals? Silver में हमारा maximum किसका है? इंडोनेशिया का है. ठीक है. Next, which country stood first in the final standings in the tournament? तो first कौन आए? Obviously China. Which of the following statements is definitely true? No country won more than 6 medals in total. तो ये तो गलत है. Definitely इंडोनेशिया का हमारा 7 है. So ये हमारा गलत है. Definitely true ढूंढ रहे हैं. The country that won the maximum number of silver medals did not win any gold medals. तो maximum number of silver medals जिसका है, right, that is Indonesia, did not win any gold medals. That point is definitely, बाकी दोनों statement obviously गलत हो रहे होंगे. What is the maximum total number of medals won by any country in the tournament? Maximum total number of medals. So हमारा number कितना पहुंचा हुआ है? 7, and that is the final answer. Right, so that was a very tricky set, a bit difficult, but because आपको बहुत सारे possibilities try करने पड़ेंगे, evaluate करने पड़ेंगे, analytical puzzle है, right? If you have any doubts, you can just put that in comments. Thank you.